حزب اللہ کا تل ابیب کے قریب اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس یونٹ پر میزائل حملے کا دعویٰ، وسطی اسرائیل میں سائرن بج گئے۔ اسرائیل کا کھلے مقام پر میزائل گرنے کا اعتراف۔ اسرائیل کا لبنان کے ساحلی شہر سور پر رات کو پھر حملہ۔ پیر کو حزب اللہ کے 120 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ 7 اکتوبر کو غزہ اور یمن سے بھی اسرائیل پر حملے کیے گئے۔ اسرائیلی دفاعی نظام نے یمن سے حوثیوں کا تل ابیب پر فائر کیا گیا بیلسٹک میزائل مار گرایا۔ بن گورین ایئرپورٹ عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے مزید 72 فلسطینی شہید۔ طوفان الاقصی کی پہلی سالگرہ پر القسام بریگیڈ نے کہا کہ دشمن سے طویل جنگ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج پر کامیاب حملوں کی ویڈیوز جاری کر دی گئیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف قومی قیادت یک زبان، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا عزم۔ آل پارٹیز کانفرنس میں عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی اور جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ OIC، عرب لیگ اور دیگر عالمی اداروں کی طرف سے امن و استحکام کے لیے سیاسی اور سفارتی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ فلسطین کے عوام کو آزادی کے حصول کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ پاکستان نے فلسطین اور لبنان کے بھائیوں کے لیے امدادی سامان بھجوایا ہے۔ کانفرنس سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا، اسرائیل کے اقدامات دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سب سے پہلے فلسطین میں جاری خون ریزی کو بند کرنا ہوگا۔ جنگ بندی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جنگ بندی کے لیے ہمیں شد و مت سے آواز اٹھانی چاہیے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کی 2 ریاستی حل کی مخالفت۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 2 ریاستی حل کا جواز نہ شرعی ہے، نہ سیاسی، نہ جغرافیائی طور پر ممکن ہے۔ اس خطے میں یہودیوں کی آبادی یا بستی کا کوئی جواز نہیں۔ حماس کے حملے نے اس مسئلے کی نوعیت ہی بدل کر رکھ دی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، 2 ریاستی حل یا 1967 کی پوزیشن کی حمایت قائد اعظم کے اصولی موقف کی نفی ہے۔ اس پلیٹ فارم سے صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست کا پیغام جانا چاہیے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، صدر نون لیگ نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر بھی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ تنظیم کے بغیر اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مجوزہ ترمیم کے لیے JUI نے اپنا 80% مسودہ تیار کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم جلد مولانا فضل الرحمان کی وزیر دفاع خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ہفتے کو KP ہاؤس سے غائب ہو کر رات عمر ایوب کے گھر گزاری۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے PTI کے خطرہ ہونے کا تاثر اب زائل ہو گیا ہے۔ 2 دن پہلے تک PTI والے جو گالیاں سوشل میڈیا پر حکومت کو پڑھواتے تھے، اب خود PTI کو پڑھ رہی ہیں۔ PTI کا کارکن مایوس ہو چکا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بانی PTI علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مستقبل میں علی امین کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین چھپے نہیں تھے، بلکہ یہ وزیر اعلیٰ کی حکمت عملی تھی، اور اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں کہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے بنائی گئی ٹاسک فورس کے IPP سے مذاکرات جاری۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں تقریباً 2400 میگا واٹ صلاحیت کی 5 IPPs بند ہو جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں بند کی جانے والی 5 IPPs کے نام طے کر لیے گئے۔ بند کی جانے والی IPPs سے معاہدے ختم کرنے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ بحیرہ عرب میں بننے والا ممکنہ طوفان اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستانی ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتا ہے۔ NDMA نے بحیرہ عرب میں ممکنہ طوفانی صورتحال کا پیشگی الرٹ جاری کر دیا۔ ممکنہ طوفان پیدا کرنے والا سسٹم فی الحال لکشدیپ وادی بھارت کے قریب ہے۔ NDMA متعلقہ محکموں کے ساتھ مل کر صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔
पंजाब हुकूमत ने अडाला जेल में 18 अक्टूबर तक तमाम मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमा, वकला और फैमिली की मुलाकात पर भी पाबंदी होगी। मुलाकातों पर पाबंदी सिक्योरिटी वजूहात के बायस लगाई गई है। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला किया गया है। 4 अक्टूबर को डी चौक में पीटीआई के एहतजाज पर बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 5 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी समेत 13 दफात शामिल। मुकदमात तरनोल, कराची कंपनी, रमना, गोलड़ा और थाना I9 में दर्ज किए गए। वज़ीर आला KP अली अमीन, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ, आजम स्वाति, साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी नामजद। बानी पीटीआई समेत कई पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ हसन अब्दाल में भी मुकदमा दर्ज। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमे में जैन कुरैशी, अजमा खान और अलीमा खान भी नामजद। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को लीज मुद्दत और बिल्डिंग्स रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया। CDA ज़राए का कहना है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हाउस नहीं बल्कि पंजाब हाउस, बलूचिस्तान हाउस, गिलगित बल्तिस्तान हाउस समेत इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद सरकारी इमारतों की लीज की मुद्दत कई साल पहले खत्म हो चुकी है। इन सरकारी इमारतों में बिल्डिंग्स बाय लॉज की खिलाफ वर्जियां भी की गई हैं। कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाम बहक, तीसरा भाई जख्मी हो गया। जाम बहक बच्चों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान थीं। तीसरे जख्मी भाई अरहम की उम्र 10 साल है। हादसे के चौथे जख्मी की शनाख्त 25 साल के बाबर के नाम से हुई। फरार होने वाले टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाका मकीनों का एहतजाज, कहा बच्चे अपने मामू को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे, घर वापसी पर वाटर टैंकर ने टक्कर मार दी। घोटकी टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर गाड़ियों पर डाकुओं की फायरिंग, खातून समेत 3 मुसाफिर जख्मी, डाकू फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से मुतादिद गाड़ियों के टायर फट गए। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की माड़ीपुर में कार्रवाई, मुबैना जासूस गिरफ्तार, मुलजिम से दस्ती बम और दीगर हथियार बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के पास मुख्तलिफ नामों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी मौजूद थे। मुलजिम भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट में मुकदमा दर्ज में 29,000 ज़रई ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिली के मंसूबे पर अमल दरामद न हो सका। वज़ीर आज़म की जानिब से मंसूबे की तकमील के लिए दी गई 3 माह की डेडलाइन पूरी हो गई। बलूचिस्तान में एक भी ज़रई ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल नहीं किया गया। महकमा तवानाई हुकाम का कहना है कि ज़रई ट्यूबवेल्स के मालिकान की तस्दीक का अमल जारी है। विफाकी हुकूमत के हिस्से की रकम भी अभी तक मौसूल नहीं हुई। हैदराबाद की लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल के डायरेक्टर की रिकॉर्ड निकाल कर ले जाने की वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में अब्दुल सत्तार जतोई को बजट ऑफिस से रिकॉर्ड ले जाते देखा जा सकता है। नैब लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल में 3 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम की भी तहकीकात कर रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने 2 अक्टूबर को अब्दुल सत्तार की तहकीकात का तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा माली, तिजारती और टैक्स इस्लाहात के हवाले से मरकजी किरदार अदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे मुनीर अकरम का खिताब, कहा अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम सिर्फ इस वक्त मजबूत हो सकता है जब उसके चार्टर के तमाम उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाए। सलामती कौंसिल के इस्लाहात पर जोर देते हुए मुनीर अकरम ने कहा कि ताकतवर ममालिक की हिकमत अमली के मुकाबले से बचते हुए इस्लाहात होनी चाहिए। तारीखी नाइंसाफियों को दूर किया जाना चाहिए। 2030 एजेंडे को तेज करने के लिए माजी के मुआहदों पर अमल पैरा होना जरूरी है। पिछले मुआहदों में तब्दीली नाकाबिले कबूल है। अमरीकी महकमा खारजा ने भारत को टॉरपेडोज फरोख्त की मंजूरी दे दी। भारत को $175 मिलियन मालियत के टॉरपेडोज फरोख्त किए जाएंगे। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 3% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। WTI खाम तेल की कीमत $77 फी बैरल हो गई। इसराइल की तरफ से बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई है। 7 अक्टूबर को इसराइल ने जनूबी बैरूत के अलावा बैरूत के नवाही इलाके कैफोन पर हमला किया। इस हमले में 3 मासूम बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। जियो न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो छोटे बच्चों के खिलौने वहां बिखरे हुए थे। लबनान से पाकिस्तानियों के इनखला के लिए खुसूसी परवाज की इजाज़त दे दी गई।
CAA हुकाम के मुताबिक एयरबस 320 तैयारे से 180 पाकिस्तानियों को लबनान से पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। आइंदा 48 घंटे के दौरान गैर मुल्की एयरलाइन पाकिस्तानियों को लबनान से लाएगी। लबनान में पाकिस्तानी सफीर को परवाज की इजाजत से मुतालिक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आगाह कर दिया। कराची में मरकजी जमीयत अहले हदीस के तहत फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि यूरोप में हज़ारों लोगों के सर्वे में इसराइल को दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया गया। हम फ़लस्तीन का मुकदमा जीत चुके, इसराइल शिकस्त खा चुका है। हम 50 साल पहले भी फ़लस्तीन के साथ थे, 50 साल बाद भी आपके साथ होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि अरब ममालिक सहूनियों के सामने बेबस नजर आते हैं। गजा में मिस्र की सरहद से दवाओं की तरसील तो की जा सकती है, अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों को इंसाफ देने में नाकाम हो चुका है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इसराइल का हमास को ख़त्म करने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि जिस तरह हो फ़लस्तीनियों की मदद करे। हुक्मरान लफ्ज़ी हिमायत के बजाय अमली इक़दाम करें। अल्लामा साजिद मीर ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद के जरिए इसराइल और अमरीका का मुकाबला कर सकती है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दीगर मुकर्ररीन ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की। पाकिस्तान में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले को 19 बरस हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में वसी पैमाने पर तबाही हुई थी। ज़लज़ले में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। आबादियाँ मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। हंसते बसते शहर सेकंडों में उजड़ गए। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान और दोस्त ममालिक ने बरवक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करके ज़लज़ला मुतासरीन को दोबारा ज़िंदगी की जानिब लौटाने में भरपूर किरदार अदा किया। कौमी यौम इस्तिकामत पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 8 अक्टूबर का ज़लज़ला नाकाबिल फरामोश तबाही का बायस बना। इस तबाही के दौरान कौम ने बेमिसाल इस्तिकामत और इत्तेहाद का मुजाहिरा किया और मुतासरीन की दिल खोल कर मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र पाकिस्तान को कुदरती आफात से लाहक खतरा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद 2022 का सैलाब बड़ी कुदरती आफत थी। पाकिस्तानी अवाम और इदारों ने बहरानों से निमटने के लिए बेपनाह आज़म का मुजाहिरा किया। मौसर ताउन हंगामी सूरत हाल के लिए मुतबादिल लाहेअमल की मौजूदगी कुदरती आफात से निमटने के लिए अहम है। हमेशा बहादुर पाकिस्तानी अवाम की मदद से ऐसी तमाम आफात का मुकाबला किया। दिल का रिश्ता ऐप पर इकलौती बेटी ने अपनी बेवा वालिदा के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया। आलिया का रिश्ता तय हुआ तो उन्हें अपनी वालिदा की फिक्र लाहक हो गई। ऐप पर वालिदा का प्रोफाइल बनाया और बहुत जल्द उनका भी मैच बन गया। आलिया खुश हैं कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से घर बैठे एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। मुश्किल हालात में उम्मीद का चिराग जलाए वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सकाफती सरगर्मियां जारी। 38 रोजा मेले के 12वें दिन अमेरिका, स्पेन और आयरलैंड के फनकार भी पाकिस्तानियों के साथ घुल मिल गए। रिवायती धुनों पर मगरबी थिएटर और म्यूजिकल ग्रुप ने धमाल डाला, तालियां बजाईं, गिटार सुना और अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहिरा किया।